Hello dear students. Today we are going to start the second part of the life process, that is respiration. पहला part क्या life process में basically four small chapters we have to study. First was nutrition, second is respiration, then transportation and excretion. So this is respiration. What is respiration? In a layman's language, what usually we think कि simply breathing, intake of oxygen and release of carbon dioxide. ऑक्सीजन ले लिया, CO2 छोड़ दिया, ये हो गया हमारा respiration. But क्या actually ऐसा है? No, it is not like that. Respiration is a process of intake of oxygen and utilization of that oxygen for oxidation of glucose and or other food particles. And then after the oxidation of food particles, there will be release of energy, carbon dioxide and water, that is respiration. So respiration is defined as the process of intake of oxygen and its utilization for oxidation of food to release energy, carbon dioxide and water. ये हो गया हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेशन. अब ये रेस्पिरेशन में अगर बात करें तो देयर आर टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में वी कैन डिवाइड इट. फर्स्ट इज ब्रीदिंग, सेकंड इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. अब ब्रीदिंग क्या है, जो पहले मैंने बताया, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का क्या है, इनटेक लिया, इनहेलेशन, इनहेल है ना, दैट इज O2 का इनटेक किया और इनहेल किया. Then release of carbon dioxide. Release of carbon dioxide, or we can say exhalation, exhale of carbon dioxide. So inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide is simply known as breathing. This is breathing. But इस ब्रीदिंग के बाद जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर गया, दैट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड इन द सेल्यूलर respiration. So what is cellular respiration? In the cellular respiration, all the oxygen goes to the cells of the body. Each and every cells are filled with oxygen. Blood क्या करता है, इस ऑक्सीजन को लेके हर एक सेल तक पहुंचाता है. And each and every cell will have their O2. And then of course the cells are having some smaller parts of food, smaller molecules of food like glucose और अदर फूड पार्टिकल्स. सो हर एक सेल में ये ऑक्सीजन फूड के पार्टिकल्स को लाइक ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा. सो इट विल बर्न द फूड पार्टिकल्स एंड आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स डेफिनेटली फूड में क्या स्टोर है, एनर्जी इज स्टोर्ड. दैट एनर्जी विल बी रिलीज्ड एंड एनर्जी रिलीज के साथ साथ बाकी और भी चीजें रिलीज होंगी विच इज there in the food. So carbon dioxide and water will also be released. So ये कहाँ take place, where it's take place in the cells of the body. That is why this is called cellular respiration. So there are two parts of respiration, breathing and cellular respiration. दोनों में difference अगर देखें तो क्या है, breathing cells में नहीं होता, outside of the cells. Cellular respiration takes place in the cells. Breathing simply inhalation and exhalation, a mechanical process. But cellular respiration, this is kind of chemical process, biochemical process, जिसमें कि ऑक्सीजन फूड को ब्रेक करता है एंड बाकी अलग चीजें रिलीज होती हैं. सो इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स एंड अ काइंड ऑफ chemical process, not mechanical process. Now next is, अगर हम टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कितने तरह के हैं. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. किसके एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा. सो टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. जब फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. जब फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब दोनों रेस्पिरेशन में और एक चीज है, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस, 36 ATP ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस. किस में, एरोबिक रेस्पिरेशन में. एंड इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, in this only 2 ATP of energy is released. अब
एरोबिक रेस्पिरेशन में और क्या एंड प्रोडक्ट्स होंगे? इतने एनर्जी की तो हमने बात कर ली. व्हाट अबाउट CO2 एंड वाटर? ऑफ कोर्स एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल आल्सो बी रिलीज्ड. बट इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि इथाइल अल्कोहल विल बी फॉर्म. दैट मीन्स इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द फूड से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कुछ बनेंगे. इन केस ऑफ एनिमल्स लाइक हमारे मसल्स में, बॉडी के मसल्स में लैक्टिक एसिड, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर एनिमल्स के केस में इथाइल अल्कोहल. नाउ दिस वन वी हैव डन. अब एरोबिक और एनारोबिक का केमिकल इक्वेशन. सो केमिकल इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज, दिस इज व्हाट? ग्लूकोज. क्या फॉर्मूला है इसका? C6H12O6. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ पे? रेस्पिरेशन में क्या होता है? फूड, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है. तो फूड पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलर पार्टिकल ऑफ द फूड. कार्बोहाइड्रेट का क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ग्लूकोज. सो ग्लूकोज C6H12O6. दिस विल बी फर्स्ट सेल में कहाँ पे गया ये? इन द cell cytoplasm of the cell. So in the cytoplasm of the cell it will break in presence of some kind of enzymes. कुछ enzymes के presence में ये break होगा pyruvic acid में. This pyruvic acid is a 3 carbon compound. कितने carbon compound है ये? 3 carbon compound. Now Krebs cycle, the next step is Krebs cycle. Krebs cycle takes place in mitochondria. जो mitochondria है सेल का, एक सेल ऑर्गेनिल, उसके अंदर क्रेब्स साइकिल विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. सो 6CO2 विल बी 6O2 विल बी हियर, एंड देन आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल, वाटर 6 मॉलिक्यूल, 36 ATP ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड. दिस टेक्स प्लेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है साइटोप्लाज्म, दैट विल बी एज इट इज इन प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम्स. बट यहाँ पे पायरुविक एसिड तो बना, ऑफ कोर्स यहाँ पे हेयर आल्सो इट विल बी फॉर्म. लेकिन नाउ अगेन द नेक्स्ट स्टेप इज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल ब्रेक इनटू इथाइल अल्कोहल. किसमें ब्रेक होगा ये? इथाइल अल्कोहल. This ethyl alcohol chemical formula is C2H5OH, and carbon dioxide will be released and 2 ATP of energy will be released. So ये difference है chemical equation में. दोनों में क्या है? Glycolysis takes place in both. Till there will be same process, same enzymes will divide it. Pyruvic acid तक आ गया. After that aerobic respiration, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में complete breakdown of the food particle. Anaerobic respiration, absence of oxygen, incomplete breakdown of food particle, ethyl alcohol will be formed. So because there is incomplete breakdown of food particles, so energy भी कम amount में release होगा. Only 2 ATP of energy will be released. Now in the next we will discuss more about the anaerobic respiration and then about plants. Bye bye.